بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. آج ہمارا ترجمہ نماز کورس کا چھٹا سبق ہے، اور ہم جو ہے نماز کے اذکار، ان کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ اذکار کا ترجمہ اور مفہوم ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، کچھ باقی ہے انشاءاللہ تحیات، اور اسی طرح دعائے قنوت، اور اسی طرح درود شریف، اور کچھ اور جو چیزیں ہیں وہ باقی ہے۔ اب ہم جو ہے سورہ فاتحہ میں تھے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 تک آپ کے سامنے تفسیر بیان کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 جو ہے وہاں سے تفسیر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، اور آج ہماری یہ سورت الفاتحہ مکمل ہو جائے گی، اور کوشش کریں گے کہ آج جو ہے آخری 10 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جو ہے وہ بھی کر لیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ یا اللہ، اے اللہ ہمیں چلا دیجئے سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے، نہ گمراہ لوگوں کا، کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے کہ جن پر آپ کا غضب ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلائیے جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے۔ تو یہ ان آیات کا مختصر ترجمہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اہدنا، اہدنا اے اللہ ہمیں دکھا دیجیے۔ اہدی، ہدا یہدی، بعض ضرب یضرب سے ہدا یہدی سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بتا دینا، دکھا دینا، پہنچا دینا۔ ہدایت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ملتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ فلاں کو ہدایت نصیب ہو گئی، تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے کی توفیق ہوگی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس ہدایت کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے، کبھی الا کے ساتھ، یعنی اس کے بعد الا کا لفظ ہوتا ہے، اور کبھی بغیر الا کے، اور قرآن مجید میں یہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہوا ہے؟ دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ یہ سکرین بھی نظر آ رہی جی؟ قرآن مجید میں اہدی جو ہے، ہدایت کا جو لفظ ہے، الہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور الہ کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لام کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، اسے ہدا لہو، ہدا الیہ۔ اور ان میں علماء نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے کہ اگر اس کے بعد الہ ہو تو اکثر اس کا معنی ہوتا ہے بتلا دینا، اور اگر اس کے بعد الہ نہ ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے بتا دینا۔ مثال لیتے ہیں کہ راستہ تو یہ سامنے ہے، مین روڈ جا رہا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ راستہ بتلا دیں۔ ایک صورت کیا ہے کہ آپ راستہ بتا دیں کہ بھائی یہاں سے باہر نکلو تو پھر اس طرف مڑ جاؤ، جب سامنے جاؤ گے تو راستہ نظر آ جائے گا۔ تو یہ ہے راستہ بتلا دینا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ، اور ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا دیا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، اب چل پڑو۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
इहदिना सिरातल मुस्तकीम फरमाया। इहदिना इला सिरातल मुस्तकीम इरशाद नहीं हुआ, बल्कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम बगैर इला आया है। ठीक है, यानी यहाँ पे इला नहीं आया। तो इसलिए कई उलमा ने इसका ये तर्जुमा फरमाया कि ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते तक पहुंचा दीजिए, सिर्फ बतलाए भी नहीं बल्कि हमें वहां ले जाके खड़ा कर दीजिए, हमें चला दीजिए कि ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते तक पहुंचा दीजिए। सिरात का माना है रास्ता, मुस्तकीम का माना है सीधा। सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता। उलमा ने लिखा कि जो सीधा रास्ता होता है वो हमेशा छोटा होता है, करीब भी होता है, और जितने टेढ़े रास्ते होंगे वो दूर होंगे, और उसमें रास्ते से भटकने के बड़े इम्कान होते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें जाना तो है सामने दरवाजे पर, अगर बिल्कुल सीधे जाएंगे तो ये सिरात मुस्तकीम है, सीधे पहुंच जाएंगे, जल्दी से पहुंच जाएंगे, और ये सबसे करीबी रास्ता भी है और छोटा भी रास्ता है। लेकिन अगर हम इधर से घूम के जाएंगे या उधर से घूम के जाएंगे, गलियों से होते हुए जाएंगे या ऊपर से घूम के जाएंगे, तो ये जो रास्ता है ये लंबा हो जाएगा, और ये सिरात मुस्तकीम भी नहीं होगा, टेढ़ा रास्ता होगा। और इसमें इस बात का भी इम्कान है कि जाना तो है अपने सामने को, अब दूसरी तरफ को चल पड़ जाए। जब आप टेढ़े निकल गए तो हो सकता है कि मुड़ के आप असल मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन इसका भी इम्कान है कि आप ना मुड़े बल्कि जो टेढ़ है उस टेढ़ में और इजाफा होता चला जाए। अब किसी और गली में हो गए तो वो गली कहीं के कहीं और निकल जाएगी। तो इस दिन सिरातुल मुस्तकीम फरमाया गया कि ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, कि ए अल्लाह, जन्नत में पहुंचने का ऐसा रास्ता हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए, बल्कि उस पर चला दीजिए जो जल्दी से जन्नत तक पहुंचा देता हो। रास्ते तो बहुत है जन्नत तक पहुंचने के, लेकिन बाज रास्ते करीब के होते हैं और सीधे होते हैं, और बाज टेढ़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो ए अल्लाह, हमें सिरात मुस्तकीम पर पहुंचा दीजिए, यानी ऐसे रास्ते पर पहुंचा दीजिए जो जल्दी से मंजिल तक पहुंचाने वाला हो, करीब तरीन रास्ता हो, जल्दी से हमें जन्नत तक पहुंचा दे, तकलीफ कम से कम हो। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें सिखाई कि हर नमाज में ये दुआ किया करो, बल्कि हर नमाज की हर रकात के अंदर ये दुआ किया करो, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। उलमाए किराम ने ये भी लिखा है कि सूरह फातिहा जो है पूरे कुरान मजीद का खुलासा है। सूरह फातिहा ये क्या है? पूरे कुरान मजीद का खुलासा है, और सूरह फातिहा का खुलासा इहदिना सिरातुल मुस्तकीम है, क्योंकि मकसूद है जन्नत तक पहुंचना। इस दुनिया में जो हमें भेजा गया, तो भेजने का मकसूद सिर्फ ये नहीं है कि खा लें पी लें, बल्कि आइंदा एक जिंदगी की तैयारी मकसूद है। ये सब काम भी है, खाना है, हंसना है, बोलना है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ असल जो मकसूद है वो है आखिरत की तैयारी। तो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, और ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि जिसमें मेहनत कम से कम लगे और आदमी सीधा जन्नत में पहुंच जाए। वरना बसा औकात आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन नतज कम हासिल होते हैं, या नतज देर से हासिल होते हैं। दुनिया में भी यही है कि दुनिया में बहुत सारे काम है, उनके लिए अगर आप सीधा रास्ता इख्तियार करें तो मेहनत कम खर्च होती है, नतज बहुत जल्दी बरामद होते हैं, अच्छे नतज बरामद होते हैं। दुनिया के हर शोबे में ऐसे ही है। अगर आप दुनिया के शोबों में किसी भी शोबे के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, उसमें तजर्बाकार अफराद हों, जो माहिर अफराद हों, उनसे रबता रखें, उनके मशवरों और तजर्बे पे अमल करते हुए आगे बढ़ते चले जाए, तो उस शोबे में आपकी तरक्की जल्दी होगी। इसलिए कि तजर्बाकार लोग साथ है, मुखलिस लोग साथ है, तजर्बाकार है, वो आपको उस रास्ते के नशे व फराज बताते जाएंगे, तो आप उस शोबे में जल्दी से तरक्की करेंगे। और अगर आप अकेले चलते रहे, उस शोबे के जो माहिरीन थे उनसे आपने कोई राब्ता नहीं रखा, अपने तौर पे कोशिश करते रहे, तो आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश बहुत ज्यादा होगी, नतज बहुत कम निकलेंगे। जब दुनिया के अंदर ये हाल है, तो जो आखिरत की तैयारी है, दीन का मामला है, उसमें इससे कहीं ज्यादा अहमियत है कि दीन के अंदर भी तजर्बाकार लोगों से, अल्लाह वालों से राब्ता रखा जाए। इसमें आपकी मेहनत कम होगी, नतज ज्यादा निकलेंगे।
اور جلدی سے آپ کو منزل مقصود حاصل ہوگی، ورنہ آپ محنت کرتے رہیں گے، نتائج دیر سے نکلیں گے، کم نکلیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے۔ جن لوگوں کا راستہ، وہ افراد جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر دوسری جگہ فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پانچویں پارے میں یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ النبیین، انبیاء ہے، والصدیقین، صدیق ہے، والشہداء، اور شہداء ہے، والصالحین، اور صالحین ہے۔ یہ وہ افراد ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ بہترین رفیق ہے۔ یاد رکھیے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہر انسان پر ہے، کافر پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کافر پر بھی برستی رہتی ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیچارہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے ان نعمتوں کو اپنے لیے نعمت نہیں بناتا، بلکہ اپنے لیے عذاب بناتا ہے۔ حالانکہ وہی چیز مسلمان کے لیے نعمت بنتی ہے، کیونکہ جب مسلمان کو نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، صحیح جگہ میں خرچ کرتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کافر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہے، لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا، ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو خالق، اور جو کہ خالق ہے اور مالک ہے، دینے والی ذات ہے، وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کا معنی ہے انکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر انسان پہ برستی ہے، لیکن خاص انعام اللہ کا مؤمنین پر ہے۔ پھر مؤمنین کے اندر بہت خاص انعام انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر ہے۔ اور اگر آپ نیچے سے چلیں گے تو سب سے نچلا درجہ ہو گیا مؤمنین کا، اس سے اوپر درجہ ہو گیا صالحین کا، اس سے اوپر درجہ ہو گیا شہداء کا، اس سے اوپر درجہ ہو گیا صدیقین کا، اس سے اوپر درجہ ہو گیا انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ سارے مؤمن ہے۔ ان مؤمنین کے اندر یہ فرق ہے، بعض نیک ہوتے ہیں، جو نیکی کی کوشش کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صالح، اب وہ صالحین میں شمار ہے، اس کا درجہ اور بڑھ گیا۔ پھر صالحین کے بعد اگر اس نے اللہ کے راستے میں خوب کوشش شروع کر دی، جان مال کی قربانی دینی شروع کر دی، تو اس کا شمار اوپر پہنچ گیا، صالحین کے بجائے وہ شہداء میں شامل ہو گیا۔ پھر وہ مقام اور آگے بڑھا کہ وہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، دین کے تمام شعبوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو وہ کس میں داخل ہو گیا؟ صدیقین میں۔ اب صدیق وہ مقام ہے جہاں پر عام امتی کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد درجہ ہے انبیاء علیہم السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مؤمنین پر، صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر اور انبیاء علیہم السلام پر۔ اور یہ وہ حضرات ہے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ اور ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم بھی دعا کیا کرو، اهدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی صالحین کے راستے پہ چلا دیجئے، شہداء کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، صدیقین کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اور جو آیت میں نے ابھی سورہ نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ایک جملہ آیا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ لوگ بڑے حسین رفیق ہے۔
यानी बेहतरीन रफीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी शोबे में जाना चाहें तो उस तजुर्बाकार लोगों की रफाकत जो है बड़ी मुफीद ना साबित होती है। मेहनत कम होती है, नताइज ज्यादा निकलते हैं। तो अल्लाह ताला ने अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन के आगे फरमाया वहसुन उलाइका रफीका, कि ये लोग बेहतरीन रफीक हैं। इशारा कर दिया कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, शुहदा से मिलते जुलते रहा करो, सिद्दीकीन से करीब करीब रहा करो, अंबिया किराम के तरीके पे चलने की कोशिश करते रहा करो। ये बेहतरीन रफाकत है। इसी से जन्नत की मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी, रास्ते पे चलना आसान हो जाएगा। चुनांचे आपको मालूम है कि जो आदमी अकेला दीन के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है उसको बड़ी मुश्किलात पेश आती है, बहुत मेहनत करता है, नतीजा कम निकलता है। लेकिन जो आदमी मुसलमानों के साथ, नेक लोगों के साथ मिलता जुलता रहता है, मसलन 5 वक्त मस्जिद में आ रहा है, हाजिर हो रहा है, सालिहीन की माइयत नसीब हो रही है। अगर घर में नमाज पढ़ रहा है तो सालिहीन की माइयत नसीब नहीं होगी, मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा, सालिहीन की माइयत नसीब होगी, शुहदा को देखने का मौका मिलेगा, सिद्दीकीन की बात सुनने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला उसके लिए दीन का रास्ता आसान से आसान तर बनाएगा। तो अल्लाह ताला ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम जब फरमाया, इरशाद कर दिया कि देखो, अगर अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हो, दीन के रास्ते पे चलना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों से ताल्लुक रखो। अल्लाह के नेक बंदों के साथ क्या करो? ताल्लुक रखो। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर मारिफुल कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम के आगे ये फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ठीक है। ये नहीं फरमाया सिरात और रसूल के, "ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा", यानी पैगंबर का रास्ता। अगर ऐसा फरमाते तो भी बिल्कुल ठीक था। और अगर ये फरमा देते कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल कुरान, "ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा", यानी कुरान का रास्ता देखा, तो भी ठीक था। लेकिन हक ताला ने खास तौर पे मुन्नअम अलैहिम का जिक्र किया, इशारा कर दिया कि देखो, रसूल के रास्ते पे चलना चाहते हो, कुरान मजीद के रास्ते पे चलना चाहते हो, उसके लिए भी तरीका यही है कि जो मुनाम अलैहिम है, अल्लाह का इनाम हुआ है, उन पर रास्ता इख्तियार करो, सालिहीन के साथ साथ रहो, शुहदा के साथ साथ रहो, सिद्दीकीन के साथ साथ रहो, तो फिर तुम्हारे लिए दीन का रास्ता आसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता आसान होगा, कुरान पे चलने की तौफीक तुम्हें होगी। और बाकी तुम खाली कुरान मजीद देख के बैठ जाओगे, मेहनत ज्यादा होगी, नतीजा कम निकलेगा। मैं ये नहीं कहता कि सवाब नहीं मिलेगा, सवाब तो मिलेगा। एक आदमी सारा दिन कुरान मजीद पढ़ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, सवाब तो उसको मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन नताइज उसको बहुत थोड़े हासिल होंगे, बहुत मेहनत उसकी ज्यादा होगी, और गलती बल्कि गलतियों का इम्कान उसके अलावा है। तो रास्ता जो है वो ये है कि मुनअम अलैहिम, यानी अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक कायम किया जाए, उनके साथ रफाकत रखी जाए। ये दीन के रास्ते पे चलने के लिए अहम तरीन बात यह है कि आपके जो साथी है वो सही हो, आपके मिलने जुलने वाले जो है वो सही हो, आपकी सोहबत सही हो। आप चाहते हैं कि मैं दीन के रास्ते पे चलूं, लेकिन आपका उठना बैठना आवारा लोगों के साथ है, आपके ताल्लुकात जो है आवारा लोगों के साथ है, कुछ दिन तो आप दीन पे चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बुरा माहौल है, आपके जो बुरे दोस्त है, वो फिर आपको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे, दीन के रास्ते से हटा लेंगे। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ आप अपना माहौल तब्दील करें, अपनी दोस्तियां अच्छे लोगों के साथ रखें, अपने ताल्लुकात अच्छे लोगों के साथ रखें, तो दीन पर अमल करना जो है आसान होगा। आपने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम बिमन युखालिल, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है तो हर एक को देख लेना चाहिए कि उसकी दोस्तियां किस से है। यानी ये देख लेना चाहिए कि ताल्लुकात ज्यादा किस से बढ़ रहे हैं, बुरे लोगों से है या दीनदार लोगों से। अगर बुरे लोगों से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दीन के अंदर कमी आ रही है। लेकिन अगर नेक लोगों से ताल्लुकात बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि दीन के अंदर आपकी तरक्की हो रही है, इजाफा हो रहा है, बरकत हो रही है। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है तो अल्लाह ताला ने इस सूरह फातिहा के अंदर फरमाया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया। और मालूम हो गया कि जिन पे अल्लाह ताला का इनाम हुआ है वो कौन लोग हैं? सालिहीन,
शुहदा, सिद्दीकीन है। यहाँ पे एक इश्काल होता है, सवाल होता है कि आदमी जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया तो वो सीधे रास्ते पे आ गया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह ताला को उसने मान लिया। वो अब तो वो सीधे रास्ते पर तो है। जब वो सीधे रास्ते पर है तो फिर उसको इस दुआ का हुक्म क्यों दे दिया जा रहा है कि "ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए"। यानी हर नमाज की हर रकात में ये दुआ मंगवाई जा रही है कि "ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा"। तो उलमा ने इसकी कई तौजीहात बयान फरमाई है। पहली तौजी तो ये बयान फरमाई कि है तो ये सीधे रास्ते पर, दीन के रास्ते पर। जब अल्लाह ताला ने उसको नमाज की तौफीक दे दी तो सीधे रास्ते पर है, लेकिन सीधे रास्ते पे चलता भी ही तो रहे, ऐसा ना हो कि भटक जाए। अल्लाह ताला से इसी की तौफीक मांगते रहना चाहिए, क्योंकि आदमी को भटकने में कुछ देर नहीं लगती। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। इसकी मिसालें बहुत मिलती है कि आदमी अच्छा खासा दीन के रास्ते पे चला जा रहा है, लेकिन उसने कुछ ऐसी हरकत की, अल्लाह ताला की शान में नाऊज़ु बिल्लाह, कोई ऐसी गुस्ताखी की, किसी का हक मार लिया, या कोई ऐसी बात की कि अल्लाह ताला को नागवार हुई, गजब में आ गया, दीन से हटता चला गया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ होती है। तो इसलिए हमें दुआ सिखाई गई कि ठीक है, तुम दीन के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन उस पर इस्तिकामत की भी दुआ मांगो। इसी को सूफिया किराम अल इस्तिकामत फौकल करामा कहते हैं। इस्तिकामत करामत से 1000 दर्जे ज्यादा है। क्या मतलब? एक आदमी दीन पर इस्तिकामत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हलाल हराम का उसको ख्याल है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा कर रहा है, उसका अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा है। और बरखिलाफ दूसरे शख्स के कभी कभार करामत उसके हाथ से जाहिर हो रही है, मगर दीन पर इस्तिकामत नहीं है, तो ये इस्तिकामत करामत से भी बढ़कर है। हाँ, जुनैद रहमतुल्लाहि अलैह बड़े औलिया अल्लाह में से है। उनका वाक़या मशहूर है, क्या एक आदमी उनकी बड़ी तारीफ सुनकर उनके पास आ गया कि बड़े औलिया अल्लाह में से है। काफी अरसा रहा, 10 साल उनके पास गुजार दिए, दीन की तलब में आया था। 10 साल के अरसे के बाद वो कहने लगा, हजरत मुझे आपके साथ इतना अरसा रहते हुए हो गया है, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। हज जुनैद ने फरमाया कि ये बताओ, इन 10 सालों में तुमने मेरा कोई काम खिलाफ शरीयत देखा है? उसने कहा कोई काम खिलाफ शरीयत तो नहीं देखा। फरमाया उससे बढ़ के और क्या करामत होगी? तो इस्तिकामत जो है करामत से भी बढ़कर है। 1000 करामतें एक तरफ और दीन पर इस्तिकामत दूसरी तरफ। इस्तिकामत तरीका है अंबिया अलैहिमुस्सलाम का, सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का। और इहदिना सिरातल मुस्तकीम में गोया हमसे दुआ मंगवाई जा रही है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते के ऊपर इस्तिकामत अता फरमा दीजिए। हमें सीधे रास्ते पर क्या? इस्तिकामत अता फरमा दीजिए। तो ये पहली तौजीह हो गई। दूसरी तौजीह बाज़ उलमा ने ये फरमाई कि ये जो हमसे कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि ये कहो ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता देखा, इसका ये मतलब ये है कि हमें उस सीधे रास्ते के अंदर कमाल अता फरमा दीजिए। हमें उस सीधे रास्ते के अंदर कमाल अता फरमा दीजिए, क्योंकि उस सीधे रास्ते के अंदर कमाल की कोई हद नहीं है, दीनी कमाल की कोई हद नहीं है। जैसे दुनियावी कमाल की कोई हद नहीं है। एक आदमी के पास 10,000 है, फिर 20,000 हो गए, फिर 50,000 हो गए, फिर 1 लाख हो गए, फिर 2 लाख हो गए। अब जाहिर है कि बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह मर जाएगा। तो जिस तरह इस दुनिया के कमाल की कोई हद नहीं है, तो जो दीन है उसके अंदर कमाल की क्या हद हो सकती है? उसमें आदमी बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। चुनांचे मुमिनीन से बढ़ के सालिहीन की फहरिस्त में दाखिल होता है, सालिहीन के नीचे दर्जे में आता है, फिर दरमियानी फहरिस्त में आता है, फिर ऊपर की फहरिस्त में आता है, फिर शुहदा की फहरिस्त में दाखिल होता है, फिर शुहदा की दरमियानी फहरिस्त में आता है, फिर ऊपर की फहरिस्त में आता है। इसी तरह उसका मकाम बढ़ता चला जाता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये होगा कि ए अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर तो हूँ, लेकिन इसमें कमाल अता फरमाते जाइएगा। मेरी हर नमाज मेरी पहले से बढ़कर हो। जैसे बच्चा है, आपने देखा होगा पढ़ता है किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता, इतना मामूली इजाफा होता है कि महसूस ही नहीं होता। अगर कोई आदमी 4-6 महीने के बाद आए देखे तो कहता है कि आपका बच्चा तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। और खुद माँ को महसूस होता है कि लो जी, ये कपड़ा छोटा हो गया। क्या हो रहा है? बच्चे की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता।
इसी तरह दीन की भी बढ़ोतरी होती है। अगर तुम कहो कि मैं एकदम जबरदस्त दीनदार बन जाऊं तो ये मुश्किल काम है, इसका नुकसान भी होता है। पहले भी बताया था कि मजे मजे से चलो, ऐसा ऐसा अपने दीन को तरक्की देते रहो, जैसा कि बच्चे की तरक्की होती है। और बच्चे को जवान बनाने में माँ को तवील मेहनत करनी पड़ती है। वो बच्चा मुसलसल ग़िज़ा लेता रहता है, तो 20-25 साल में वो जवान बनता है, बालिग होता है, और 40 साल में उसकी अकल भी पूरी होती है। तो इसी तरह दीन में जब आदमी दाखिल होता है तो एकदम उसको कमाल हासिल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो दीन की ग़िज़ा लेता रहता है, उसका दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ता रहता है, दीन में उसको कमाल हासिल होता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता, कामिल होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका मकाम कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो हर नमाज के अंदर जो दुआ कर रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो पहला मतलब क्या हो गया कि ए अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम से भटकने ना दीजिएगा, चलाते रहिएगा। दूसरा मतलब क्या हो गया कि ए अल्लाह इसमें कमाल अता फरमा दीजिएगा। चुनांचे जो जो दुआ करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, तमाम शोबों में दीन पे अमल करता रहेगा, उसको कामिल कमाल जो है उसमें हासिल होता रहेगा। तो ये दूसरी तवजी हो गई। तीसरी तवजी बड़ी नाजिक है, वो ये है कि ए अल्लाह हर मामले में मुझे सिरात मुस्तकीम पर रख, बिल्कुल बैलेंस पे रखिएगा, न इफरात हो न तफरीत। जैसा कि मैंने बताया कि सिरात मुस्तकीम बिल्कुल सीधा रास्ता होता है, जरा सा इधर हुआ तो आदमी कहीं और निकल जाएगा, जरा सा उधर हुआ तो कहीं और निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा होगा तो जाएगा। तो सिरात मुस्तकीम का मतलब है कि ए अल्लाह मुझे बिल्कुल सीधे रास्ते पे रखिए, कि जिसमें ना इफरात हो ना तफरीत हो, ना मैं दाई तरफ को मुड़ूं ना मैं बाई तरफ को मुड़ूं, बिल्कुल सीधा रहूं। अब हर मामले के अंदर सिरात मुस्तकीम इख्तियार करना ये शिरो में बड़ा मुश्किल होता है। हर एक मामले में बैलेंस और तवाजुन रखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई। इसी को कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया गया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाया, बीचों बीच उम्मत बनाया। तुम में न इफरात है न तफरीत है, न शिद्दत है न नरमी है। आदमी को ना तो इतना सख्त होना चाहिए कि कड़वा ही हो जाए, और ना ऐसा नरम होना चाहिए कि सब उसको खा जाए। तो इस तवाजुन को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है। और इसकी हर कदम पे हमें जरूरत पड़ती रहती है, हर हर कदम पे हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है। दीन के हर शोबे में, नमाज में भी सिरात मुस्तकीम है, हुकूकुल्लाह में भी सिरात मुस्तकीम है, हुकूकुल इबाद के अंदर भी सिरात मुस्तकीम है। इसके इतने पहलू है कि बयान करना भी मुश्किल है। दीन के तमाम शोबों के अंदर तवाजुन इख्तियार करना इस तरीके से कि हुकूकुल्लाह भी सही तरीके से अदा हो जाए, हुकूकुल इबाद भी सही तरीके से अदा हो जाए, अल्लाह भी राजी हो और बंदों का भी हक ज़ाया ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके अंदर तवाजुन और बैलेंस रखना, ये सिरात मुस्तकीम है। बाज़ उलमाए किराम ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम में सिरात का लफ्ज इख्तियार फरमाया, हालांकि इसके लिए सबील भी आता है, तरीक भी आता है, लेकिन सिरात से इशारा है पुल सिरात की तरफ, कि देखो जिस तरह पुल सिरात बारीक है, बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पर चलना मुश्किल, जब तक कि अल्लाह ताला की खास तौफीक ना हो। इसी तरह दीन में बिल्कुल बैलेंस पे कायम रहना, तवाजुन पे कायम रहना, ये भी सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक के साथ होता है, वरना आदमी या इधर गिर पड़ता है या उधर गिर पड़ता है, तवाजुन बरकरार नहीं रहता, बैलेंस जिंदगी के अंदर बरकरार नहीं रहता। इब्तिदान दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। चुनांचे शुरू में आपने देखा होगा, इब्तिदा में जब आदमी दीन की तरफ आता है तो उसको तवाजुन कायम करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। कभी सोचा कि अल्लाह नाराज हो रहा है, कभी सोच बीवी नाराज हो रही है, कभी उसका मालिक नाराज हो रहा है, कभी भाई नाराज हो रहा है। एक को राजी करता है, दूसरा नाराज होने लगता है। मखलूक को राजी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला की नाराजगी नजर आती है। अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करता है, उसके लिए मेहनत करता है तो देखता है मखलूक नाराज हो रही है। अल्लाह ताला का हक अदा करता है तो मखलूक के हुकूक छूटने लगते हैं, मखलूक की तरफ जरा रगबत करता है तो अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू हो जाती है, घबराने लगता है, हत्ता के हाथ पांव फूल जाते हैं। आदमी सोचता है कि ए अल्लाह मैं कहाँ फंस गया, हालांकि ये क्या है, बैलेंस नहीं हो पा रहा।
اسی میں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی شیخ سے رابطہ رکھے، کسی بڑے سے رابطہ رکھے، صدیقین، شہداء، صلحاء سے رابطہ رکھے، ان سے پوچھ پوچھ کے انسان چلتا رہے تاکہ دین اور دنیا کے اندر توازن پیدا ہو، دنیا بھی صحیح ہو، آخرت بھی صحیح ہو۔ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہونا چاہیے، مخلوق بھی راضی ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اوپر ہی نہیں جاتی۔ نمبر ایک وہ عورت جن کا شوہر ناراض ہو، نمبر دو وہ غلام جس کا آقا ناراض ہو، نمبر تین وہ امام جن کے مقتدی اس سے ناراض ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ مخلوق کو بھی راضی کرنے کی کوشش ضروری ہے، امام اللہ تعالیٰ کو تو راضی کر رہا ہے لیکن سارے مقتدی جو ہے اس سے ناراض ہے۔ آخر یہ سارے مقتدی کیوں ناراض ہے؟ سب کے دماغوں میں تو پوڑا نہیں نکلا، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی جبھی تو ناراضگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام لوگوں کی امامت کر رہا ہے، سارے مقتدی اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت میں توازن نہ ہوا۔ تو ایسی کچھ باتیں اس کے اندر ضرور ہے اس کی وجہ سے سارے اس سے ناراض ہے۔ اب بیوی ہے، شوہر اس سے ناراض ہے، معلوم ہوا کہ طبیعت کے اندر توازن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو راضی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی، تو طبیعت کے اندر اس توازن کے پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ تو اس کی دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اے اللہ ہر معاملے میں ہمیں توازن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ان سے تجاوز مت کیا کرو، ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے، یعنی وہ اپنے جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہے؟ کہ اللہ کو راضی رکھا جائے، مخلوق کے بھی حقوق ادا کیے جائے، حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں اور حقوق العباد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے قریب جتنے حضرات تھے وہ سب آپ کے اوپر جانثار تھے، آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں، اور ایک مرتبہ آپ نے تمام ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں فارغ کرتا ہوں، دنیا کی خوب نعمتیں تمہیں دوں گا، تم چلی جاؤ، لیکن اگر میرے پاس رہو گی تو فقر و فاقے میں رہنا ہوگا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حالانکہ یہاں فقر و فاقہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثار تھی، آپ کے صحابہ آپ کے اوپر جانثار تھے، آپ کے قریب رہنے والے آپ کے اوپر جانثار تھے، ظاہر ہے یہ سب کچھ ویسے تو نہیں ہو جاتا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق پر ہے۔ علماء نے عظیم اخلاق کی تفصیل کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے طریقے سے ادا کرنا کہ مخلوق کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو رہا ہو اور مخلوق کے حقوق جو ہے وہ بھی ادا ہو رہے ہوں، یہ خلق عظیم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہمیں دکھا دیجیے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام کیا، وہ صالحین ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے، انبیاء علیہم السلام ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو دیکھتے رہنا چاہیے، ان کی سیرتیں پڑھنی چاہیے، ان کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، ان سے ملتے رہنا چاہیے، ان سے پوچھتے رہنا چاہیے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو صراط مستقیم پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ آخری آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ گمراہ ہے۔ اب یہاں پہ 2 طبقات کا ذکر ہوا، ایک وہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور دوسرا وہ جو گمراہ ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी तफसील इरशाद फरमाई, मगजूब अलैहिम से मुराद यहूद और जालीन से मुराद है गुमराह यानी ईसाई। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब दूसरा मुराद नहीं है, बल्कि ये इनकी खास मुराद है। और यहूद को जो मगजूब अलैहिम फरमाया, तो उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा, कुरान मजीद में कई जगह फरमाया गया, वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह व मअवाहुम जहन्नम, कि यहूदी अल्लाह ताला के गजब में आ गए। और गजब में आने की वजह यह थी कि यहूदी जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। और जालिन कहा गया ईसाइयों को और नसारा को जो गुमराह थे, क्योंकि उनके पास इल्म ही नहीं था। गोया गोया के दो तबकों से पनाह मांगी गई। एक वो तबका जिनके पास इल्म तो हो लेकिन अमल ना हो, दूसरा वो तबका जिसके पास इल्म ही ना हो। वो तबका जिसके पास इल्म तो है, अमल नहीं कर रहा, उस पर अल्लाह ताला का गजब है। दूसरा वो जो भटका हुआ है और फिर उसको कुछ पता ही नहीं है, वो गुमराह है। मगजूब अलैहिम की तफसीर की गई यहूद के साथ। तो मगजूब अलैहिम की तफसीर यहूद के साथ की गई और जालिन की तफसीर की गई नसारा के साथ। मगर ये इन दो तबकों के साथ खास नहीं है, बल्कि मगजूब अलैहिम के अंदर हर वो तबका शामिल है जिसको इल्म तो हो मगर अमल सही ना करता हो। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। इसमें सारे वो आलिम, वो तालिब इल्म जो जानते हैं कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन पैसों के लालच में या किसी और चक्कर में दीन को खराब कर रहे हैं, तो ये दाखिल है अल मगजूब अलैहिम में। और जालिम के अंदर वो तबकात शामिल है जिनको पता ही नहीं, कुछ नहीं, दीन का इल्म ही हासिल नहीं करते, तो वो तो हो गए गुमराह। तो इस आखिरी आयत के अंदर इन दो तबकों से पनाह मांगी गई कि ए अल्लाह, इन दो तबकों के रास्ते पे हमें ना चला, न उन लोगों के रास्ते पर जिन पे आपका गजब हुआ है, वलद्दालीन, और न उन लोगों के रास्ते पे जो गुमराह है। और ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगजूब अलैहिम से यहूद मुराद है और जालिम से ईसाई मुराद है, इससे ये बात भी मालूम हुई कि नेक लोगों के तरीके इख्तियार करना चाहिए, यहूद और नसारा के तरीके इख्तियार नहीं करना चाहिए। अगर सिरात मुस्तकीम पे चलना है, अल्लाह के रास्ते पे चलना है, जन्नत तक पहुंचना है, अल्लाह ताला के इनामात की बारिश अपने ऊपर करवानी है, उसका तरीका यह है कि मुनाम अलैहिम का तरीका इख्तियार करो, यानी जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है उनके तरीके इख्तियार करो। अगर तुमने नाऊज़ बिल्लाह यहूद और नसारा के तरीके इख्तियार किए, काफिरों के तौर तरीके इख्तियार किए, उनका लिबास, उनकी मुआशरत, उनकी चीज़ें इख्तियार की, उसका नतीजा ये होगा कि वो गुमराही तुम्हारे अंदर लौट आ जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करता है उसका शुमार उन्हीं में हो जाता है। इस सूरह फातिहा के आखिर में फरमाया गया था, गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालीन, कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे जो गुमराह है। अब ये सूरह फातिहा का मुकम्मल खुलासा आपके सामने बयान करता हूँ कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ें तो बेतवज्जुही से ना पढ़ें। ये जो सारी तकरीर 2-3 दिनों में मैंने आपके सामने की है और आपने सुन ली, लेकिन सूरह फातिहा हम इसी तरह पढ़ते रहे जैसे पहले पढ़ते थे, बेहोशी के आलम में या रिकॉर्ड के आलम में, कि नमाज में अल्लाह अकबर कह के रिकॉर्ड चल पड़ा और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह पे रिकॉर्ड खत्म हुआ, तो फिर इस तकरीर का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, जब हम सूरह फातिहा पढ़े तो सोच सोच के पढ़े हम जुबान से क्या कह रहे हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो परवरदिगार है जहानों का, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, मालिक है रोज़े जज़ा का। ए अल्लाह, हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से हम मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, उन लोगों का रास्ता जिन पे आपका इनाम हुआ है, ना उन लोगों का रास्ता दिखाइए जिन पे आपका गजब हुआ है। और ए अल्लाह, गुमराह लोगों का रास्ता भी ना दिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब आदमी सूरह फातिहा पढ़े तो आखिर में कहे आमीन। आमीन का मतलब है कि ए अल्लाह कबूल फरमा। आमीन का मतलब क्या है? कि ए अल्लाह कबूल फरमा।
اس لیے اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو بھی آمین کہنی چاہیے، اکیلا نماز پڑھے بھی آپ آمین کہیں۔ اور اگر امام کی قراءت ہو رہی ہو اور امام کی قراءت آپ سنیں اور وہ پہنچے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، تو امام کو بھی آہستہ سے آمین کہنی چاہیے اور مقتدیوں کو بھی آہستہ سے آمین کہنی چاہیے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ، یہ جو امام کہہ رہا ہے میری طرف سے بھی قبول فرمائے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کو بھی صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اور صحیح طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔